Okay, so we start the session. So today we are discuss about alpha beta pruning, or sometimes it's called alpha beta cutoff. Okay, so before first I can discuss about the logic and algorithm. Then we can go for the assignment and book, which book you can follow. Okay, then I can show you which book you can download, even if that PDF book is also available on the internet. Okay, so let's start. So in the last class, what we discussed, now see, first understand the min-max algorithm. So this structure is given in a min-max. Okay. So wait, it's not working. Okay, now it's working. So suppose in min-max algorithm, we have to draw like this one. So we can draw this way. And the by default, we can start from this one is the maximum. That means the max player. And this one is the minimum. Yes or no? This is the minimum, and these are the terminal. Okay, these are the terminals nodes. Okay, so in terminals nodes, the utility factor is given. Suppose the utility factor is given like this way. They will create a utility factor like this way, or we can create a utility factor this way. So these are the full perfect binary tree. So all the levels are equal. So the utility factor is given. Now, suppose 8, -1, 2, 4, -5, 4, -1, -2. This is a utility factor. Suppose whatever the player, which player will start earning, meaning, so it get 8, -1, whatever. Now see, in min-max algorithm, what we have to do, we have to first travel this side. Yes or no? I have to explore this one, all the node. Then again, I can explore this node, all the node. Then we can decide which player maximum value, what is the minimum value. That means if in a tree, n numbers of node, 4 numbers of nodes, so we have to explore up to 4 nodes. Yes or no? That means in a tree, n numbers of node, I have to explore n numbers node. So that the time complexity is b to power d. That means b is the branch factor like 1 2 3 4 5 up to n, and d is the numbers of depth we can follow. So for whatever you can perform, that means the here numbers of node is equal to numbers of whatever I can explore is. So alpha and beta to minimize that concept. That means alpha and beta pruning, we did not explore each and every node. We have to avoiding the exploring the unnecessary node. That means we can reduce the time complexity in the best condition. Then the worst condition, as it is the mean and max algorithm, alpha and beta in the worst condition same as it is mean and max. But in the best condition, it can restrict the searching of the all the node. That means we can say that we can reduce the time complexity in the best condition alpha and beta pruning d by 2. Okay, that is the our goal to reduce this one. Clear? Now, how can perform this algorithm? So that is important. So, so that is the concept why you apply. That means the extended version of mean and max, alpha and beta. So I'm going to write alpha beta pruning. Okay, alpha beta pruning. That is the extended version of min max. So now see. Okay, so this is also called cut off search. Okay, so don't be confused. Cut off search. Cut off search. Okay, algorithm that is also called cut off search algorithm. Now see. So same, we can perform same tree. I am going to draw the tree like this one. Now see, I am drawing one tree. So this is the alpha beta tree, this one, and suppose I am putting down, these are the utility factor in a box. These are the utility factor, these are the terminals part. So I can put in a box
as a utility factor. If max will be win, so this factor we will apply, and this one. Okay, so this one. So as you know, by default we can start from here max. This one is the mean, yes or no? And this again, and this one will be the max. Yes or no? Mean, max, mean, max. And this one is a terminal nodes where utility factor is given. Terminal node. Okay. Now see, in alpha beta, so it can be represented as a, this one is a alpha, and this one is represented as a beta. Now, the alpha always represent maximum. Okay. So alpha always represent maximum. Beta always represent minimum. This one is the alpha. Okay. So that means I am going to write, this is the whole alpha, 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 this is the beta, and this is the beta. Yes or no? And this one is the alpha. Okay. Did you understand? Maximum is alpha and minimum is the beta assigned. Okay. Now how to perform? And this value is given like this utility factor of this given like 2, 3, then 5, 9, then 0, then 1, then 7, then 5. Okay. Now see, so we can start searching. That means we can go from the bottom to top. We have to transfer our utility factor or alpha and beta value to the top. Okay. Now see, so suppose I can travel from the dat side. I can start searching from the dat side. Okay. I start searching from the dat side. Now here the alpha, that means the maximum value. So automatically whatever the value of this one, the left hand side of the starting node is automatically transferred to the this one. Is automatically transferred to the this one. This value is automatically transferred to the this one. That means now my alpha value is 2. Okay. So after reaching the alpha value, I have to explore this one. So what is the meaning of alpha equal to 2? That means if the value can be greater than 2, then I can go forward this side. Okay. This value can be greater than 2, then I can go forward from this side. Okay. The value more than 2, then I can go forward or update. So this will be more than greater than or equal to value 2. Okay. Now see, so this value, so what is the value of this side? 3. That means more than 3. So I can update alpha value as a 3, not a 2. Okay. So I can update this one as a 3. So alpha value becomes 3. Alpha value becomes 3 here. So I can change the color. No, black is better. I can replace alpha values as 3. Now this alpha value is automatically transferred to the this beta value. This alpha value is automatically transferred to the beta value. That is the algorithm rule. We can directly pass the value. Whatever the node of this one left hand side, pass to the parent node. So I can pass and this value greater than equal to 3. Now my aim is I can explore the right hand side of this node. So I can put the node name like A, B, C, D, E, F, and G. Now see, I can explore node B on the right hand side only if I can get minimum value of that one. That means less than 3 or equal to 3. Then I have to explore. Now I am going to that side, B side. Now see, I am going this side, then this side. What is the alpha value? 9. Yes or no? Yes. Here, if I can transfer this value 5, but here I'm getting 9 value. So and this one will be updated to 9. Now, is it getting less than 3 or equal to 3? No. So that time this left hand, right hand side of B is not be explored. That means scroll. Okay. But in min-max algorithm, I have to explore this side. So now we can restrict that value कि beta less than equal to 3 we can get. इससे ज्यादा हमारा नहीं हो सकता. इससे ज्यादा ही वैल्यू आएगी 3 से अगर इधर हम मूव करते हैं तो that means I have to prune this one. So I have to not move this one, not move this one.
दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव, मुझे ये कंसिडर करना ही नहीं है। तो आपका हो गया ना, आपने टाइम सेव कर लिया, नोड एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके क्लियर? नाउ दिस बीटा वैल्यू इज ट्रांसफर टू द दिस वन अल्फा 3. Okay, so now my aim is I can get the right hand side of B equal to 3 or more than 3, then my algorithm is successful. That is the maximum value. Now I am going to explore. So I am going to explore this one, then this one. Now see, here the maximum value will be transferred. First transfer to 0, but 1 is the maximum. The alpha value become 1. This automatically transfer to this one, beta. This will be 1. Okay, so now the node C will be told that if I can move right hand side, values should be less than or equal to 1, not more than. But I can travel this side, I can get a maximum value 7 or 5, so need not to be travel. So this node also prone. Okay, so whatever the maximum value, we can get 3 utility factor. That is the alpha and beta. आपको ये नोट्स ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ा ना, आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू से निकाली, अब चेक करो। तो व्हाट इज द कंडीशन? तो ऑलवेज चेक द कंडीशन इन अल्फा बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, दैट इज अ कंडीशन फॉर द प्रोनिंग। आप चेक कर लो, हर जगह अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होगा, हर जगह होगा। अगर आप मीन मैक्स एल्गोरिथम अप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा, आगे ना 3 ही आएगा। आप चेक कर लो दिस वन, इफ आई मीन अप्लाई द मीन मैक्स, सो 3, this side 9 and this side 1 and this side 7. So इसमें से मिनिमम क्या आ गया 3 और इधर से आपका मिनिमम क्या आ गया ये मिनिमम 1 आ गया और यहाँ से मैक्सिमम क्या आ गया 3 आ गया। तो लेकिन जब हमने वी कैन अप्लाई अल्फा एंड बीटा प्रोनिंग, वी नीड नॉट टू एक्सप्लोर दिस नोड, you need not to explore this node, we need not to explore this node. क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? Is it clear? Alpha and beta cloning? Online student, how this algorithm will work? Yeah, only one person reply, Ria. What about Jinel, Tirth, Khushbu, Srishti, Yash? Yeah, okay. So only 3 people are confirmed that algorithm is clear. आप लोग का clear हुआ? Offline? Clear? करते हैं, if we go for the optimal, that means my move is a best selection, then we can get order of the time complexity. देखो, or then we can get time complexity always order of b का power d by 2 for best move. Best move. Okay, in the worst condition, it's same as mean max algorithm. In the worst condition, same as a mixed condition algorithm, that means order of b ka power d. So that is the scenario. Okay, so this way we have to perform. So देखो आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो इससे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं. So they will ask how many nodes are pruned. आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये ग्राफ जो दिया हुआ है, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू, वो इंटरेस्टेड नहीं है पूछने में. वो लोग पूछेंगे भाई आपने कितने नोड्स को और कौन कौन से नोड को प्रून किया, ये बताओ. तो हमने कौन से नोड को प्रून किया है, ई को और जी को, क्या है ना, बी वाले. हाँ, बी को तो प्रून नहीं किया ना, हमने किसी को प्रून किया है, ई को और जी को. हमने एफ से भी तो कंपेयर किया, एफ को तो प्रून नहीं किया, जी को किया और ई को. तो दे विल इंटरेस्टेड टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू आस्क व्हाट इज द अल्फा वैल्यू, व्हाट इज द बीटा वैल्यू. तो इस तरह क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं. मैंने ये आपको पढ़ाया ये सब, लेकिन वो पूछा जाएगा अंदर के साइड से. ओके, सो बेसिकली जैसे आप एक एग्जांपल लो, फेसबुक का क्वेश्चन है, उन्होंने क्या पूछते हैं, जैसे आपने सबको पता है कि बाइनरी ट्री क्या होता है रियल ट्री, सब कुछ सबको पता है. ओके, तो वो ये इंटरेस्टेड नहीं होते कि बाइनरी ट्री हो, वो बोले कि हाउ मेनी इंटरनल नोड्स इन बाइनरी ट्री. आप एक फुल बाइनरी ट्री डिजाइन करो और उसमें इंटरनल नोड्स कितने हैं, उसके लीफ नोड कितने हैं. फिर वो क्या बोलेंगे कि इनके जो आपने कॉस्ट दे देंगे, वो ईच एंड एवरी नोड हैविंग डिफरेंट कॉस्ट. तो आप कॉस्ट कैलकुलेट करो, इंटरनल नोड्स का कॉस्ट कितना है, सबको पता है.
बाइनरी कैसे बनता है, लेकिन ये चीजें नहीं पढ़ाई थी, ये आपको एनालिसिस से आएगा. दैट मीन्स हियर वी इन वन क्वेश्चन वी कंबाइन 2 and 3 knowledge. Okay, concept we cannot combine. So this way, so they will interested to ask which node we have to prove. So we can prove here E and G, not B, not F, not C, not D, not A. A तो होगा ही नहीं. तो ये सब नोडों में हमने प्रूव किया. ओके, सो रेडी रहिएगा इन टाइप के क्वेश्चंस को. और अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अल्फा बीटा प्रोनिंग, सो दैट इज द कंडीशन. अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा. आप चेक कर लो हर जगह, जहां जहां हमने चेक किया हर जगह वही होगा. अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, दैट इज ओके. सो प्लीज फॉर प्रैक्टिस वी कैन नोट डाउन वन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पस. देखो आपको इसमें करना क्या है, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आप तो मिन मैक्स एल्गोरिथम से निकाल दोगे. अगर हम बोला है कि लास्ट में कि व्हाट इज द अल्फा वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, तो यू कैन गेट 3, तो आपको लीजिएगा. लेकिन एग्जाम में बोला है कि अल्फा बीटा प्रूनिंग करके दिखाओ, तो आपको ये प्रोसेस करके दिखाना होगा. दैट मींस ऑल द टाइम यू अपडेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ऑल द टाइम अपडेट द वैल्यू ऑफ बीटा, ईच एंड एवरी नोड. ओके, नाउ समटाइम्स वी कैन नॉट बी कंफ्यूज. अल्फा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड बीटा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी. ओके, क्लियर. सो आप कहीं कहीं बुक्स में देखे होंगे, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो माइनस अल्फा एन 3 दिखा होगा आपको कहीं कहीं. तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. अगर एल्गोरिथम में जाओगे तो कंफ्यूजिंग होगा. सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई आई एम टेकिंग अल्फा स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, दैट मींस द स्टार्ट, दिस विल बी द स्टार्ट. ओके, why I am taking alpha will be start from minus infinity and beta will be start from minus plus beta, because alpha is the maximum value, so maximum will be always start from the minimum na. So I can reach minus 10, minus 3, that is maximum, minus 4, minus 5, then 0, 1, 2, 3, and beta should be minimum. So minimum so plus 10, 3, 2, like this one minus 1. Understand? So I can take. तो कंफ्यूज मत होना कि भाई अल्फा हमने प्लस इन्फिनिटी क्यों लिया है और बीटा क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम अप्रोच करना है तो स्टार्ट फ्रॉम माइनस अपोजिट साइड, और हमें मिनिमम अप्रोच करना है तो मैक्सिमम से मिनिमम जाया जाता है, ना कि मिनिमम से मैक्सिमम जाया जाता है. सो दैट इज क्लियर. सो व्हाई आई टेक अल्फा इज अ मैक्सिमम माइनस एंड बीटा इज अ प्लस. ओके, सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिस. मैं सब अभी शेयर कर दूंगा आप लोग को सब. और डोंट बी कंफ्यूज. समटाइम्स क्या होगा, दे विल गिव द ग्राफ एंड दे विल टेल यू दैट अप्लाई अल्फा एंड बीटा प्रोनिंग, अप्लाई मैक्स एंड मीन. वो ग्राफ में कहीं मेंशन नहीं करेंगे कि वेयर इज अ मैक्स, वेयर इज अ मीन. ओके, सो ऑलवेज ग्राफ शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम. अब बताओ कि मैक्सिमम से क्यों स्टार्ट होता है. वो पूछ देंगे, आप इंटरव्यू में बैठे हो बोल देंगे कि भाई व्हाई वी स्टार्ट ऑलवेज ग्राफ फ्रॉम द मैक्सिमम, व्हाई नॉट स्टार्ट. क्या बोलेंगे आप, क्वेश्चन समझो. वो बोलेंगे कि व्हाई वी कैन स्टार्ट ऑलवेज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू से क्यों स्टार्ट करते हैं. व्हाई अल्फा विल बी ओनली टॉप, व्हाई नॉट बीटा. हमने यहाँ पर बीटा क्यों नहीं लिखा कि भाई बीटा ये अल्फा ये. हम तो हमेशा यही बोल रहे हैं आपको कि अल्फा ये बीटा ये, इसी पैटर्न से. व्हाई, दैट इज माय क्वेश्चन, दैट इज माय क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है मेरा, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था. या ऑनलाइन एनीवन कैन रिप्लाई व्हाई. या रिया करेक्ट. सो वी गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अगर हम यहाँ मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, क्या ऑप्टिमल मिलेगा हमें. अभी तुम मान लो कि तुम कोई भी गेम खेलते हो, दैट इज अ गेम प्लेइंग गेम ना. अगर आप गेम खेलते हो क्या हारने के लिए खेलते हो, हाँ जीतने के लिए ना, तो दैट इज द लॉजिकल. तो हमें हमेशा जीतना है, तो इसलिए हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं ना कि मिनिमम से. तब हम समझते हैं कि तुम खेलोगे जीतने के लिए और तुम सोच रहे कि ये हारेगा, तभी तो तुम्हारे हिसाब से ये मिनिमम हो गया और तुम अपने हिसाब से मैक्सिमम हो गया. लेकिन जब इसका टर्न आया तो ये सोचा नहीं मैं मैक्सिमम हो गया, तभी तो तुम जाके मिनिमम हो गया नेक्स्ट टाइम. समझ गया. तो ये प्रोसेस होता है. ओके रिया, थैंक यू. चलिए, कम से कम एआई की तरह आप लोग सोचते रहे. सो अगर ग्राफ में कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ मेंशन किया हो, सिर्फ टॉपिक लिखा हो कि भाई इसे अल्फा बीटा प्रूनिंग करो, तो आप मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेना. ये मत बोलना कि क्वेश्चन गलत है या वो है.
So this one is a drawing. Okay, I am drawing the boxes like a utility. All utility present and a terminal part. So I can fill this box P4. ये प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो. 2 1 7 8 9 10. क्या ये वाली वैल्यू कौन सी? ये जो वैल्यू क्या है? हाँ, रैंडम है. ये तो यूटिलिटी फैक्टर है, आपको जितने को इतने पॉइंट मिलेंगे. 11 1 12 14 9 13 16. Okay, this will be a start, max, min, max, min. ओके, सो आपको यहाँ अल्फा बीटा प्रूनिंग करनी है और मीन मैक्स दोनों एल्गोरिथम अप्लाई कर लो. मीन मैक्स एल्गोरिथम. ओके, सो दो चीजें आपको अप्लाई करनी है. एंड सपोज आई एम गिवन द नेम ऑफ दिस वन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ. और कितने नोट्स प्रून हुए वो भी फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नोट्स, आपने कौन कौन से नोट्स को प्रून किए उनका नाम भी लिखना है. यू हैव टू राइट द मेंशन द नेम इन अल्फा बीटा प्रूनिंग अप्लाई, व्हिच नोट गोइंग टू बी प्रून. ओके, व्हिच नोट एंड हाउ मेनी नोट्स यू कैन गेट अ प्रून. Yeah, please note down and try this one. थोड़ा बताओ तो कौन कौन से नोट प्रून किए इसमें. कैन यू टेल मी which node we can prune, like A B D E, which node? ओके, बड़ा करता हूँ. 3 4 2 1 7 8 9 10 2 1 1 12 14 9 13 16. अब क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ. I, K, M and O from here. I P I Q M O. क्योंकि यहाँ पे आपको तो वैल्यू कंपैरिजन चाहिए ही नहीं. चाहिए नहीं, तो ये सब पूरा प्रूव हो जाएगा. बड़ा करो क्या? सो हर जगह आपको जहां पे भी प्रून होगा ना, आपको देख लेना अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा.
बस ये कंडीशन जहां भी फॉलो हो रहा है, हो गया, वो नोट प्रून हो गया। तो फर्स्ट वी गो फॉर दिस वन, सो मिनिमम, सो 3, ओके, so this will be transferred here, so 3 the maximum, so maximum नहीं है तो ये तो प्रून हो गया, यहीं से ये प्रून हो गया। फिर ये ट्रांसफर यहाँ हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 आया, तो 3 से ज्यादा होना चाहिए, यस, ये 7 है, 7 है यहाँ पे, तो इससे ये क्या है, इससे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ज्यादा है तो ये प्रून हो गया, और ये यहाँ मिनिमम है तो वो जाएगा नहीं, तो ये पूरा प्रून हो गया। ये नहीं प्रून हुआ, ये प्रून हुआ, ठीक है। फिर उसी तरह से या आप देखो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको प्रून कर देते हैं, इधर दे कैन प्रून दिस वन, ये प्रून नहीं होगा, ये होगा ये पार्ट, और ये भी प्रून नहीं होगा, ये पार्ट होगा, क्योंकि ये तो कंपैरिजन दिया तभी तो ये प्रून करेंगे। इसी तरह ये कंपैरिजन जाएगा तब तो ये प्रून होगा, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट नीचे आते हैं, ऊपर यहाँ से ऐसे नहीं आते, डायरेक्ट लेफ्ट साइड आने के बाद, क्योंकि ये कैन फॉलो डी ऑफ एस, तो ये हमेशा ऐसे मूव करेगा, उसके बाद जाएगा। इसीलिए ये वाली क्या बोलते हैं, ये वाली वैल्यू प्रूव होती है, ताकि ये वैल्यू, एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हो कि मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं। आई जे एम एन आई नो 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 नॉट अ जी एम एंड एन, नॉट अ एन, इट शुड बी ओ ना। सर आपने 2 बार जी दिया। ओके ओके ओके, सॉरी, मैंने 2 बार जे कहाँ दी थी, के नीचे जी भी है और वहाँ मैक्स वाले में भी जी है। कहाँ आपने, मैंने बोला ओके ओके, हाँ आप इसे कुछ भी कर लो यार, हाँ सर। पी नहीं है ना, पी करो। सो देखो आपके पास प्रूनिंग होने के क्या है, तो आपके पास चांसेस ये हैं, ये वाला पार्ट, फिर ये कंपैरिजन होगा इससे, तो फिर ये वाला पार्ट प्रूनिंग होगा, ओके। फिर ये वाला पार्ट जब इधर मूव करेंगे तो ये वाला पार्ट प्रूनिंग होने के चांसेस हैं, और फिर जब इससे कंपैरिजन होगा तो ये वाला पार्ट पूरा प्रून हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपको पूरा प्रून करना होगा, ये वाला पार्ट। सर पी से तो नहीं प्रून होगा ना, पी से भी प्रून हो जाएगा ना, वहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, हाँ, तो वहाँ पूरा प्रून हो जाएगा, यहाँ पे पूरा जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखना तो पड़ेगा ना। हाँ देखना पड़ेगा ना, हाँ, तो यहाँ से भी प्रून हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहीं पे चेक करेंगे अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो जाने की जरूरत नहीं है। इसका यार एक का 4 आ रहा है सर, तो वहाँ से ई होगा प्रून, कहाँ बी से? और ई में से बी और बी और ई है, वहाँ से ई प्रून होगा क्या? ये ई कैसे प्रून होगा, इधर लाओ हम चेक करेंगे, यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी ना, ये सही वाला है। मैक्सिमम तो आपको पता होगा, मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे इक्वल क्या है, मैक्सिमम लाना है ना, बी और बी से यहाँ पे मैक्सिमम कर दो, ये वाला नीचे है ऊपर मैक्स, कितनी वैल्यू है, पूरा ऐसे चेक करो ना, इसमें अल्फा बीटा लगा के, अल्फा प्रूनिंग भी मत करो, मैक्सिमम मिनिमम वाला में जो वैल्यू है वो तो आएगा, अल्फा की वैल्यू मैक्स लेनी है ना, अल्फा तो ये यहाँ ये वाली ये की वैल्यू मैक्स कैसे लोगे, जो वैल्यू यहाँ होती है वो ट्रांसफर होती है ना, हाँ तो अब यहाँ पे अल्फा क्या होगा, 3 होगा, 4, इसमें से आंसर 4 है इसका। नहीं, यहाँ बीटा बी की वैल्यू क्या आई है, 3 4 है, सॉरी 3 आएगी, 3 आएगी, तो यही तो वैल्यू यहाँ आ गई, देखो मान लो कि अब इसको हम यहाँ पे आते हैं, अब इसको प्रूव करते हैं ग्रेटर देन के लिए, तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 कैसे आएगा, 4 आएगा ना। एच में से कौन सी मैक्स वैल्यू लेनी है, मीन ये एच, ये लेवल क्या है, मिनिमम का लेवल है, हाँ। तो मिनिमम आएगा ना, मैंने ये कहा मतलब 4 बोला, ये तो मिनिमम, ये तो देखना ही है ना, मिनिमम
जो वैल्यू है वो अल्फा हो जाएगा। सपोज ये मिनिमम है तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, ये मैक्सिमम तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट, और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं बीटा इज ग्रेटर देन, फिर यहाँ हम लोग क्या बीटा हो रहा है और यहाँ पे फिर चेक करें अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तब जाके हम प्रूविंग कर रहे हैं हर स्टेज पे। ये नहीं कि पहले मिनिमम यहाँ पे कभी प्रूविंग नहीं होता, यहाँ पे जब मिलेगा ना अल्फा की वैल्यू तभी वो proving। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर एग्जाम में आप सही से नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा अपने आप को काबू में रखिए। ओके, सो I need to discuss the book. Where is the book? So we can follow this book. चलो चलो, okay, so that means you can follow this book, Artificial Intelligence of Modern Approach। ये आपकी लाइब्रेरी में लेटेस्ट एडिशन पड़ी हुई है, ग्रीन कलर की होगी, ब्लू या लाइट ग्रीन कलर की होगी। देखो इसका राइटर का बात करें, देखो पीटर नॉर्विक, सॉरी हाँ, स्टुअर्ट रसेल एंड पीटर नॉर्विक। ये अगर एज अ बिगिनर ये आप सीख रहे हो तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, और ये बुक पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है, इसकी ये बुक पीडीएफ भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नो नीड टू कैरी आउट द बुक। ओके, मेन इससे हमें मतलब है स्टुअर्ट रसेल एंड पीटर नॉर्विक। आप एलएलएम में चीजें इनडायरेक्टली लिखी हुई है, वो 10 लाइन को एक लाइन में लिखा है, वो इसीलिए नहीं, इसको जाना है। ठीक है, और बात करते हैं असाइनमेंट का। तो बात नहीं, चले, ये असाइनमेंट आपका, मैं आपके सीआर को मेल कर दूंगा इसको, ठीक है। सो डिफाइन योर वर्ड्स इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड एजेंट, राइट एंड इजी अबाउट द ऐसे अबाउट। देखिए ये सब यूनिट 1 से है तो कुछ बड़ा इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सबके पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं इसमें। ओके, समझ में आ गया, आप इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो आई विल सेंड टू द सीआर Yeah, Vivek already sent it to the mail. Okay, Vivek, can you check?
Vivek. Okay. Huh. So today, any doubt regarding alpha beta pruning? Anyone doubt alpha beta pruning? काजल नहीं हुई चलो किया नहीं, बात नहीं करने ना, बात करने के लिए टाइम मिलेगा, डोंट वरी। तो इसकी अटेंडेंस तैयार